Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is endocrine system and adolescence. So basically in this chapter we will be studying about different kinds of hormones, कहाँ से वो secrete होते हैं, what roles do they play in our body's development is what we are going to deal in this chapter. So concepts to know: endocrine system, hormones, adolescence, development of sexual and secondary sexual characters, adolescence and the related psychological changes, and importance of personal hygiene, and at last we will be studying about stress. So an organ system is a biological system consisting of a group of organs that work together to perform one or more functions, and each organ has a specialized role in a plant or animal body and is made up of distinct tissues. These are distinct organs in human beings which form the basis of human anatomy and physiology. These organ systems are the respiratory system, digestive system, excretory system, circulatory system. Then you have the urinary system, integumentary system, skeletal system, muscular system, endocrine system. Then you have the lymphatic system, nervous system and the reproductive system. So all these are your different kinds of system जो आपकी body के basis बनाते हैं. Basically आपके पास tissues होते हैं body के अंदर, उन tissues से ही आपकी organs बनते हैं, and then some organs collectively जो एक organ system में होते हैं वो एक common function की तरफ काम करते हैं. So there are two controlling mechanisms in the body. These are the chemical control which is brought about by hormones secreted by a system of endocrine glands. तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपकी बॉडी में जो बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स या फिर न्यूरल कंट्रोल भी कहा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नर्व इंपल्सेस आप जो बाहर की तरफ एनवायरनमेंट की तरफ रिएक्ट करते हैं, कभी कभी आपकी बॉडी में बहुत सारे टाइप के चेंजेस आते हैं. दीज हैपन बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रीटेड बाय द endocrine glands. So in multicellular animals both chemical and neutral coordination are found, but in plants only chemical coordination takes place. That is, plants do not have a nervous system. तो आपका plants और animals में या ह्यूमन बींग्स में क्या डिफरेंस आ जाता है, दैट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके केमिकल और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन दोनों देखा जाता है, और प्लांट्स में सिर्फ केमिकल चेंजेस होते हैं. देयर इज नो नर्वस सिस्टम फाउंड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स. नाउ सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन. The field of medicine concerned with the endocrine system is known as the endocrinology. Now let's begin with the chapter which is the endocrine system. Endocrine system consists of endocrine glands, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, and these glands are without ducts. ऊपर ही लिखा हुआ था, these are also known as ductless glands. That means इनमें ducts present नहीं होते हैं. Hence these are called as ductless glands. These glands pour their secretion directly into the bloodstream, and the endocrine system coordinates the functioning of different body organs by producing hormones. तो ये आपके सीधे जो आपके टारगेट साइट्स होते हैं जिनको साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स सीधे हार्मोन्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बॉडीली चेंजेस आपकी बॉडी में देखे जाते हैं. सो दीज हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस secreted in very small quantities, yet they are vital and carried to all the parts of the body. They are poured directly into the bloodstream and carried to the target organs or cells. इसी की बात अभी बताई जा रही थी, सीधे आपके टारगेट ऑर्गन्स जहां के लिए वो आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं, टारगेट ऑर्गन्स तक जाते हैं और वहां पे आपकी ऑर्गन्स फंक्शन प्ले करना शुरू कर देते हैं. ऑल्दो ये हार्मोन्स बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटीज में सिक्रीट करे जाते हैं, बट स्टिल दे प्ले अ रियली वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर body. So each and every hormone secreted by a particular gland perform a particular function, and its effect is produced in either one or two specific parts only. तो जिस organ के लिए आपके hormones secrete करे जाएंगे, the target site और the target organ, वहीं पर आपको changes भी देखने को मिलते हैं. Now some glands have ducts and release their secretion either outside the body like sweat, mammary or salivary glands, or in the cavity of some organs like pancreas or liver, and these glands are known as exocrine glands. जब आपको sweat आता है, पसीना आता है, these happen because कुछ glands ऐसे होते हैं जो अपना secretion बाहर की तरफ secrete करते हैं because they have ducts present in them. For example, sweat, saliva, ये सारे बाहर की तरफ क्योंकि secrete होते हैं, that is why they are known as exocrine glands. बिल्कुल opposite है endocrine gland से.
Now in this chapter, we will study in detail about only the important endocrine glands such as thyroid, adrenal, pancreas and pituitary glands. तो ये 4 आपके glands हैं जिनके बारे में हम इस chapter में फिलहाल पढ़ने वाले हैं. Now, do you know hormones, chemical messengers are the chemical substances that are secreted by endocrine glands, which is directly poured into the bloodstream and acts on a target organ or a cell. This is just the simplest definition of what we have just studied before for the endocrine system. Now there is a summary of differences between the exocrine and the endocrine glands. The exocrine glands, ducts इसमें present होते हैं, exocrine में present होते हैं, endocrine में present नहीं होते हैं. That is why they are known as ductless glands. Then आपके जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड आर वेरी सिंपल और एंडोक्राइन ग्लैंड का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. देन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपके बहुत ही माइन्यूट लेवल के इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं एंड द सिक्रीशंस आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्जर क्वांटिटीज. एंडोक्राइन में अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है. हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है इट इज वेरी मच प्रोलॉन्ग्ड, आपको बहुत टाइम तक उसके इफेक्ट्स दिखाई देंगे और सिक्रीशंस बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटीज में होती है. नाउ लेट्स बिगिन विद द थायराइड ग्लैंड. It is the largest gland of endocrine system. In humans, a thyroid gland is a bilobed gland situated either side of the windpipe and larynx. A thyroid gland secretes the hormone called the thyroxine that contains iodine-containing protein. The thyroid hormones influence the metabolic rate, protein synthesis, the growth and development in children, and its secretion is controlled by a hormone secreted by pituitary gland, and the over-secretion or under-secretion of this gland has harmful effects on the body. So this is your windpipe. Windpipe के दोनों sides पे आपके thyroid glands present होते हैं जो एक hormone secrete करते हैं जिसको बोलते हैं thyroxine, जो कि protein synthesis और development में बहुत ज़्यादा help करता है. Now अगर बहुत ज़्यादा over secretion हो गया या under secretion हो गया तो दोनों ही cases में body में बहुत ज़्यादा harmful effects देखने को मिलते हैं. So this is your windpipe, this is your trachea और left और right side दोनों ही side में आपके ये दोनों के दोनों glands जिसको thyroid ग्लैंड बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ सिंपल गॉइटर. सिंपल गॉइटर ये आपका ओवर सोडियम के कंजम्पशन से हो जाता है. इट इज एन एलिमेंट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन आवर डेली फूड इज द मेजर कॉज ऑफ थायराइड्स. हेंस यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज रेकमेंडेड बाय डॉक्टर्स टू अवॉइड सिंपल गॉइटर. तो आपने कई बार देखा होगा किसी के गले के बाहर की तरफ बहुत ज्यादा बल्जिंग आउट सी चीज आपको देखने को मिलेगी, स्वेल अप हो जाता है काइंड ऑफ. दिस हैपेंस बिकॉज आपका जो आयोडीन कंजम्पशन होता है डेली रिकमेंडेशन होती है एक डोजेज की, उससे अगर कम बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है then one suffers from simple goiter. That is why limited amount जितना considered है, जितना जरूरत है उतना नमक डेली डाइट में आपके होना चाहिए. Then second is hyperthyroidism. This condition is caused when thyroid glands excessively produce a hormone called thyroxine. The symptoms include a change in appetite, unexpected weight loss, insomnia, fatigue, irritability, frequent urination, increased sweating, but this condition usually resolves within few months of relevant treatments and proper medication. तो hyperthyroidism में कब होता है? जो आपका thyroxine हार्मोन बहुत ज़्यादा excessively आपका glands secrete कर देते हैं. इसके symptoms क्या क्या होते हैं? आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, irritability ज़्यादा हो जाएगी, रात के टाइम पे नींद नहीं आएगी, वेट लॉस अचानक से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, यू विल बी लाइक यू वांट टू पी एवरी 1 आवर. तो ये बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स होते हैं, बट कुछ टाइम में अपने आप भी ठीक हो सकता है अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिल जाए तो. नाउ थर्ड वन इज क्रेटिनिज्म. Cretinism is a disease caused by hyperthyroidism. Iodine deficiency in diet during pregnancy is the major cause of this disease. Pregnancy के टाइम पे अगर insufficiency हो जाती है आयोडीन की तब हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग फीटस होता है उसका डेवलपमेंट इम्पेयर्ड हो जाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो जाता है. एंड इट ऑल्सो लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ. कुछ बच्चे जो पैदाइशी के टाइम पे ही जिनका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है. क्रेटिनिज्म इज वन सच डिजीज. दैट इज वाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो प्रॉपर डाइट जिसमें आयोडीन का प्रॉपर कंजम्पशन हो वो होना चाहिए. एंड देन द लास्ट वन इज myxedema. It is a severe form of hyperthyroidism characterized by swelling and thickening of your skin. It occurs when your body doesn't produce enough thyroxine or thyroid hormone. Symptoms of
Myxedema include swelling of your face, which can include the lips, eyelids, and tongue, as well as swelling and thickening of skin anywhere on the body, especially in the lower legs. अब ये आपका बहुत ज़्यादा सिवियर केस हो जाता है हाइपर थायरॉइडिज्म का, जिसमें आपकी जो बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रीटमेंट भी नहीं होता है, आपके फेस पे स्वेलिंग आने लग जाएगी, पूरी बॉडी में हाथ पे भी स्वेलिंग आने लग जाएगी, पैर पे लोअर लेग का जो पार्ट होता है वहां पर स्वेलिंग आने लग जाएगी, एंड देन ये बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है, तो इसके सीवियर इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं. सो हेंस प्रूव ये 4 बीमारियां आपको नमक की कमी की वजह से होती है. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नमक का चम्मच लेके सीधे उसको खा जाएंगे, उसके भी आपके अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं. आपकी डाइट में पका हुआ सॉल्ट यानी कि खाने में जो नमक होता है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए. नाउ सेकंड सच ग्लैंड इज एड्रेनल glands. So the adrenal glands are the endocrine glands that produce a variety of hormones including adrenaline and then steroids, aldosterone and cortisol. They are found above the kidneys, and these glands are also known as the suprarenal glands. अब एड्रेनलिन रश होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा दुख या फिर बहुत एक्सेसिव एक्साइटमेंट आपको जब किसी चीज़ का हो जाता है तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है. देन देयर इज वन स्टेरॉइड, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिजोल. ये आपके ठीक किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये इनकी लोकेशन है एड्रेनल ग्लैंड की, एंड ये आपको अलग अलग मोमेंट्स पे आपको एक्सपीरियंस भी हो सकता है. सो द एड्रेनल ग्लैंड्स हैव 2 पार्ट्स, दैट इज द कोर्टस एंड द मेडुला. कोर्टस क्या है? इसका आउटर पार्ट है ग्लैंड का, जो ऊपर वाला पार्ट होगा. द आउटर पार्ट ऑफ द कोर्टस, the gland is known as the cortex, and it produces hormones which is cortisol and the aldosterone. So the hormone secreted by adrenal cortex is well known as a cortisone, and these hormones influences carbohydrates, fat and protein metabolism, and also helps to regulate the salt and water balance in the body. They adapt the body to stresses such as extreme heat, cold, infections and many more. तो आपका ये जो सबसे पहला वाला पार्ट है which is the cortex, ये cortisol और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से सिंथेसाइज हो और प्लस डाइजेस्ट भी हो जाए. एक्सेसिवली अगर प्रोटीन अगर आप इंटेक लेते हो तो वो भी नुकसानदायक ही होता है. सो इन सबके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए कॉर्टिजोल एंड एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज रेगुलेटेड बाय द कॉर्टेक्स, विच इज द आउटर पार्ट ऑफ योर एड्रेनल ग्लैंड. सेकेंड इज द मेडुला. इट इज द इनर पार्ट ऑफ द ग्लैंड. It produces hormones adrenaline and noradrenaline. Adrenaline hormone is also known as the emergency hormone, which is secreted during the severe stress conditions, may be physical or emotional, fearfully or angry. So this is what I was telling you earlier कि आपका जो ये पूरे पैराग्राफ में आपका यही मेंशन है कि एड्रेनलिन आपका इमरजेंसी हार्मोन आता है सडनली जब आपको बहुत या तो अच्छी खबर मिल जाए या बहुत दुखी खबर मिल जाए, बहुत एक्साइटेड हो जाएं, या कभी कभी बहुत फियरफुल एक्सपीरियंसेस जैसे कि एडवेंचरस एक्टिविटी करने के लिए आप निकले हुए हैं, तो तभी भी आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रश होता है, जो आपको एक्साइटमेंट, डर, जो भी चीजें आपको अंदर से फील होती हैं. सो हेंस दिस इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन. आपको बहुत ज्यादा जब किसी तो लड़ना है या फिर आपको कोई ऐसी चीज करनी है जिसमें आपको डर से अपना आगे ओवरकम करना है, तो वो भी आपका एड्रेनलिन की वजह से ही हो पाता है. व्हेन यू ओवरकम योर ओन फियर्स इज बिकॉज ऑफ दिस hormone only. And in blood supply to the muscles and release of more glucose into the blood by the liver. अब तो ये आपका अलग अलग पोर्शंस पे सिक्रीट होता है, प्लस यही हार्मोन है जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ कभी कभी मिल जाती है. Then you have the pituitary gland. Pituitary gland is a pea-sized endocrine gland located at the base of the brain, protruding off the bottom of the hypothalamus, and the human pituitary gland is oval shaped, about the size of a chickpea, and weighs about 0.5 grams on average. तो एक छोटा छोला जो होता है, वाइट छोले आपके, उसके साइज का आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ब्रेन के बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होता है. एंड इसके क्या क्या यूजेजेस हैं, कहाँ कहाँ पे ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, लेट्स स्टडी अबाउट देम. Now, before that, do you know it is also called the master gland, as it regulates the functioning of almost all the organs, all the other endocrine glands of the body. तो उसको master gland भी बोला जाता है pituitary gland को. Why is that? Because it also almost regulates all the endocrine glands of the body. Now, what does it exactly do? Let's study that.
So the pituitary gland is responsible for the synthesis and secretion of several key hormones in the body. बहुत सारे hormones जितने भी आपकी बॉडी में, चाहे मेल हो या फीमेल्स हो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो आते हैं, it is actually because of the pituitary gland. So first function is the growth hormone, the GH. ये जो आपकी adolescent age में फीमेल की बॉडी अलग तरीके से डेवलप होती है, मेल्स की बॉडी अलग तरीके से डेवलप होती है, वो आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से. Hence it is known as the growth hormone. Second is the thyroid stimulating hormone TSH. जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो कितना थायरोक्सिन रिलीज करेगा वो भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिसाइड करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड पहले इस चीज को ऑर्डर देता है या हार्मोन सिक्रीट करता है, टारगेट साइट तक वो जाता है. दैट इज व्हेन एग्जैक्टली द थायराइड ग्लैंड्स आल्सो सिक्रीट थायरोक्सिन हार्मोन. देन Third is adrenocorticotropic hormone, ACTH. It influences adrenal gland to release of cortisol or the stress hormone. जो stress hormone cortisol release होता है, it happens because of the pituitary gland. Then happens the luteinizing hormone, which is the LH, and the follicle stimulating hormone, which is FSH. These hormones are collectively known as the gonadotropins. Both LH and FSH control sexual and reproductive characteristics in males and females, externally and internally. सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो आपके होते हैं, इंटरनली भी उनको जो आपका रेगुलेशन होती है, दैट ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी, एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के लिए भी यही ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है. देन एंटी-ड्यूरेटिक हार्मोन विच इज ADH, जो आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनीज. तो आपकी किडनीज जो वापस से आपका साफ पानी रीअब्जॉर्ब करती है, बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है, दैट ऑल्सो हैपेंस एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड देन ऑक्सीटोसिन controls certain aspects of pregnancy and childbirth such as uterine contraction and production of milk. तो pregnant ladies जो होती हैं, lactating mothers जिनको बोलते हैं, they can also breastfeed. जो milk का production उनकी body में होता है, that also happens because of oxytocin. Oxytocin कैसे release होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से. So there are a number of functions जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स फॉलो करता है, अलाउ करता है, उसकी वजह से होते हैं. That is why it is known as the master gland. Now comes the disorders, and the common disorders related to pituitary are, number one is dwarfism, जहाँ पे आपको दिखेगा कुछ लोगों की हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी रह जाती है. This condition is wherein an organism is exceptionally small. ये कब होता है? When there is insufficient amount of growth hormone. जो अभी हमने पढ़ा था, जो पहला फंक्शन था पिट्यूटरी ग्लैंड का, ग्रोथ हार्मोन, उसमें जब आपका इनसफिशिएंसी होती है तो ड्वार्फिज्म, जिसको आप हिंदी में बौना बोलते हैं, वो कंडीशन आ जाती है. देन सेकंड इज जाइगैंटिज्म. ड्वार्फिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट. कुछ लोग आपको बहुत लंबे दिखेंगे, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, हाइट ही नहीं रुकती है, बढ़ते ही जाते हैं. ये भी आपका हो जाता है. कब होता है? ये होता है जब आपके ग्रोथ हार्मोन ओवरली प्रोड्यूस हो जाते हैं. ओवर प्रोड्यूस होते हैं तो जाइगैंटिज्म आ जाता है. सो दीज आर द टू very basic related disorders to pituitary. Now comes the pancreas. Now pancreas is an elongated, flattened exocrine as well as the endocrine gland which is located behind the stomach in the loop of a duodenum. It has a cluster of hormone secreting cells called the islets of Langerhans, and they secrete two major hormones, and these are the insulin and glucagon, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं. ये आपके पेट के ठीक पीछे होते हैं. एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, दोनों ग्लैंड्स में आता है. दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन विच यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस. Now let's study about the hormones. The hormones of the pancreas are, number one, insulin. अब इंसुलिन का क्या काम होता है? इट मेनली लोअर्स द ब्लड स्ट्रीम इन 3 डिफरेंट वेज एज गिवन बिलो. नंबर वन, इट कन्वर्ट्स द एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन विच इज अल्टीमेटली स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स. तो आपकी बॉडी में जब एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा ग्लूकोज का इंटेक हो जाता है, उसको ये ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपका लिवर और मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है. सेकेंड, ये आपके सेल्स में आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको बर्न आउट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपकी
बॉडी में हीट और एनर्जी रिलीज होती है। एंड थर्ड, इट कॉजेज सेल्स टू कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू फैट। एंड अगेन फैट आपका स्टोर हो जाता है एक्सेसिवली, बट अगर लिमिटेड अमाउंट में होगा तो अगेन आपकी एनर्जी को सिंथेसाइज करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होगा। सो दीज आर थ्री थिंग्स जो इंसुलिन जब आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रोड्यूस होता है तो ये 3 चीजें करता है। अब अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है, उसकी वजह से हो जाता है डायबिटीज, और इट इज नोन एज डायबिटीज मिलेटिस। A diabetic person has high concentration of sugar or glucose in the blood. He excretes a great deal of urine loaded with sugar and feels thirsty because of the loss of water through too much urination. Usually he loses weight and tends to become weak. अब आपके कुछ केसेस में क्या होता है, जब इंसुलिन आपका प्रॉपर अमाउंट में नहीं रेगुलेट होता है या सिक्रीट होता है, डायबिटीज हो जाती है, यानी कि शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा, ना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा ना आपका फैट में कन्वर्ट होगा, वो उसी फॉर्म में रहेगा। तो शुगर का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा। ज्यादा यूरिनेशन होगा, उसकी वजह से ज्यादा प्यास लगेगी। तो ये आपके डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं कि आपको बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा और उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा आपका गला भी सूखने लग जाएगा। एंड कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि जो आपके ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इसके भी बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आपके ब्लड प्रेशर में देखे जाते हैं। ज्यादा भी सिक्रीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर अगर आपका कन्वर्ट होता गया तो शुगर की कमी भी आपकी बॉडी में वो भी नुकसानदायक होती है। देन सेकेंड हार्मोन इज ग्लूकागॉन। इट स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर टू ग्लूकोज। अब लिवर में जो आपका ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका लेवल ऑफ शुगर ब्लड में वापस से बढ़ जाता है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द मेन हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स एंड द सिक्रीशंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये आप अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका सिर्फ एक समराइज टैबुलर वर्जन है। थायराइड ग्लैंड का क्या होता है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द विंड पाइप जस्ट बिलो द लैरिंग्स। थायरॉक्सिन हार्मोन को ये सिक्रीट करता है, जो कि आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका जो मेटाबॉलिज्म हाई होता है, कुछ लोगों का खा भी लेते हैं, पच भी बहुत जल्दी जाता है, वेट भी गेन नहीं होता, दिस इज हाई मेटाबॉलिज्म, एनर्जी भी इंटैक्ट रहती है। फिर आता है एड्रेनलिन, ये आपका किडनीज के दोनों, जो आपकी किडनीज होती है उनके ऊपर होता है, जस्ट लाइक अ कैप, एड्रेनलिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रिपेयर रहती है। देन यू हैव द पैंक्रियाज, ये आपके ठीक स्टमक के पीछे होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये 2 टाइप के हार्मोन को रिलीज करते हैं, आपकी बॉडी में शुगर लेवल को ये मेंटेन रखते हैं और आपके लिवर से भी शुगर को रिलीज करते हैं। देन कम्स पिट्यूटरी, आपके ब्रेन के बिल्कुल नीचे लोअर पार्ट में ये होता है। ग्रोथ हार्मोन GH, TSH, FSH को ये रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डेवलप होती है प्रॉपर तरीके से। एंड थायराइड ग्लैंड से आपका थायरॉक्सिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही सिक्रीट होता है। नाउ चेक योर प्रोग्रेस एंड these questions you have to answer on your own. Now let's study about the adolescence. तो adolescence आपका वो ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है, चेंजिंग फेज। ये आपका वो चेंजिंग फेज होता है जब आपकी बॉडी इंटरनली तो ग्रो कर ही रही होती है, डेवलप हो रही होती है, एक्सटर्नली भी आप ग्रोथ करते हो, चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच में आप ट्रांजिशन कर रहे होते हो। यहाँ पर आपकी हेल्थ, माइंड, बॉडी, फिजिकली, इंटरनली हर तरीके से डेवलप हो रही होती है, चेंजेस आपको देखने को भी मिलते हैं, इमोशनली, फिजिकली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको इसी एडोलेसेंस, जिसको टीनेज ईयर्स भी बोलते हैं, उस टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड दीज आर द एडोलेसेंट ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ माइन्यूट चेंजेस की वजह से इनको खराब बिल्कुल नहीं करना है, पूरी तरीके से एंजॉय करना है अपनी लिमिट में रह के। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडोलेसेंस। किस तरीके के चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं, let's see that. Now, adolescence age. Growing up is a natural process. The human body starts growing from the day on of his or her birth. Various parts of the baby grow with the increase of height, but around the age of 10 to 11, growth becomes very fast. That is not only height, but there are various other changes which takes place in the body which were not there when you were a baby. These changes thus indicates that a person is growing from a child to an adult. अब आपके जब से आप पैदा होते हो तब से और जब तक डेथ आती है, पूरे लाइफ टाइम में आपके मल्टीपल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। बट ये 10 से 11 और फिर टीनेज ईयर्स में आपको कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी में जो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ नहीं प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर योर एडोलेसेंस एज। इसी टाइम पे आपकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी आप अटेन कर लेते हैं। दैट मीन्स आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट एज इज नोन एज एडोलेसेंस एज। ये आपकी 11 से स्टार्ट होती है
और 18-19 ईयर्स तक की आपके एडोलेसेंस एज, जब तक आप टीनेज रहते हो 19 तब तक रहती है। बॉयज और गर्ल्स में दोनों में ही एज सिमिलर रहती है, हेंस दे आर नोन एज टीनेजर्स। 13, 14, 15, 16 टीन आ जाता है, दीज आर योर टीनेज ईयर्स, ऑल्सो योर एडोलेसेंस ईयर्स। सो ये आपका पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, किसी में ये चेंजेस बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं, किसी में थोड़ा सा लेट मिलते हैं, बट टाइम पीरियड यही रहता है। नाउ देयर इज अ नोट, एडोलेसेंस एज इज अर्लियर इन गर्ल्स दैन बॉयज, यानी कि गर्ल्स में आपको ये मैच्योरिटी किसी भी तरीके की पहले देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू बॉयज। नाउ कम्स प्यूबर्टी। अब एडोलेसेंस आपका तब स्टार्ट होता है, या फिर एडोलेसेंस आपका वो फेज होता है जहां पे आपका प्यूबर्टी का ऑनसेट, प्यूबर्टी का स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है। प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन देयर आर मेनी चेंजेस दैट occur in the body of boys and girls. The changes during puberty are different in both boys and girls, and the puberty completes when adolescence reaches the reproductive maturity. जैसे ही reproductively दोनों मेल्स और फीमेल्स अपने अपने इंडिविजुअल लाइफ स्पैन में reproductive maturity अटेन कर लेते हैं, दैट मीन्स आपकी प्यूबर्टी कंप्लीट हो गई है एंड adolescence years are complete. Now let's see what are the physical changes that we see. तो ये 10 से 11, 12 साल वाला वही टाइम होता है जब आपकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस सडनली आने लग जाते हैं। हाइट इंक्रीज हो जाएगी, बॉडी के कुछ पार्ट्स आपके डेवलप होने लग जाएंगे। गर्ल्स में ब्रेस्ट या थाइज वाला रीजन आपका इनलार्ज होना शुरू कर जाता है, लड़कों में आपके बियर्ड आ जाती है, मुस्टैच आ जाती है, प्यूबिक एरियाज में प्यूबिक हेयर आ जाते हैं। दीज आर योर physical changes that happen between these periods. So the following changes that occurs during the adolescence are change in the body shape. जैसे ही आप इस पीरियड में ट्रांजिशन करोगे, हर पर्सन टू पर्सन में ये डिफर कर सकता है। किसी में ये चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिल सकते हैं 11-12 साल की उम्र में ही, जहाँ पे आपके जो नैरो हिप्स होते हैं वो आपकी लड़कियों में ब्रॉड होने लग जाते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है। लड़कों में भी आपको अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाते हैं। देन कम्स द इंक्रीज इन हाइट। लड़कियों में ये ज़्यादा देखा जाता है, पहले लड़कियों की हाइट लंबी होती है, लड़कों की धीरे धीरे बाद होती है, लेकिन उनकी भी लंबी हो जाती है, बट टाइम पीरियड वही रहता है। तो दिस being the most vital and conspicuous change that occurs during the adolescence. At this time, or as during this time, the bones of the arms and legs are or starts to get elongated. यही वो टाइम होता है जब आपकी हाथ की, पैरों की हड्डियां elongate यानी कि लंबी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हाइट में चेंज आना शुरू हो जाता है। बट एडोलेसेंस की एज की बिल्कुल एंड आते आते मैक्सिमम हाइट आपकी 17-18 तक अटेन हो जाती है। 19-20 के बाद बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं कि आपकी हाइट बढ़ेगी। 19 इज द लास्ट एज जब आपकी हाइट बढ़ती है। देन चेंज इन वॉइस। लड़कियों की आवाज़ हाई पिच की हो जाती है, पतली हो जाएगी, श्रिलर हो जाएगी। लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी होर्स या कोर्स होना स्टार्ट हो जाती है। वाई? बिकॉज इसी टाइम पे आप नोटिस करेंगे लड़कों में यहाँ पर आपको एडम्स एप्पल भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी सी डीप भी हो सकती है, थोड़ी सी आपको उसमें अजीब सा बिटरनेस भी फील हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप भी आ जाता है। बट नथिंग टू वरी अबाउट, जैसे ही ये टाइम आपका पास बाय हो जाएगा वैसे ही ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल हो जाती हैं। Then number 4, increased sebaceous activity of sweat and sebaceous glands. So during adolescence, the secretion of both sweat glands are sebaceous glands. Oil glands gets increased. Many young people develop acne and pimples on their face at this time due to the increased activity of these glands in the skin. तो अब आप नोटिस करेंगे कि आपके ऑयल ग्लैंड्स इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पिंपल, एक्ने फेस पे आने लग जाते हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। इट हैपेंस बिकॉज इस टाइम पे सेबास्टियस ग्लैंड जो आपका होता है ऑयल ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये देखने को मिल सकता है। बट अगेन जैसे जैसे एडोलेसेंस पीरियड खत्म होगा ये सारी चीज़ें भी आपको दिखना बंद हो जाएंगी। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ह्यूमन बींग्स जब पैदा होते हैं तो उस टाइम पे कुछ सेट ऑफ ऑर्गन्स उनके प्रेजेंट होते हैं, बट ये फंक्शनल आपके कब होते हैं? बाद में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स में और मेल में उनके जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट they are functional only after the age of puberty or after the age of adolescence. इस टाइम पे वो functional होना शुरू हो जाते हैं at the age of 11, 12, 13. It may vary from person to person. So this is known as puberty. जिस टाइम पे आपके ये organs functional होना start होते हैं. So puberty is brought about the sex hormones which start getting produced by the ovaries and the testes. Ovaries female के केस में, testis male के केस में.
So the male sex hormones are called the androgens, and the main one is called the testosterone, and the female hormone is called the estrogen. These hormones are activated by follicle stimulating hormone FSH produced by the pituitary gland. Ultimately आपका pituitary gland ही वो hormone secrete करता है follicle stimulating hormone, जिसकी वजह से females में estrogen आपका secrete होना शुरू हो जाता है and females में testosterone. Apart from this, the sex hormones also bring about several other changes such as growth of hair on the legs, chest, face and pubic areas in boys, while in girls the development of breasts start occurring and fat is start laying down in and around the thigh region, providing curvature body to them. So the various changes which have just been described constitute the person's secondary sexual characteristics, and at this stage both boys and girls have become more interested in the opposite sex. अब आपके ये जो बेसिक चीज़ें आपको ऊपर बता दी गई कौन सी हार्मोन स्वीट होते हैं, इसी की वजह से मेल्स और फीमेल्स में एक्सटर्नल चीज़ें जो चेंजेस होती हैं वो आपके होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें लड़कियों में ब्रेस्ट इनलार्ज होने लग जाती है, हिप्स पोर्शन जो होता है वहाँ पे फैट अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और लड़कों में मुस्टैच, प्यूबिक हेयर, ये सब चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं. सो द टेबल गिवन बिलो शोज द इंपॉर्टेंट फिजिकल चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी. तो बॉयज में क्या होता है? इन केस ऑफ बॉयज एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, पीनिस एंड स्क्रोटल सैक ग्रो, सडन स्पर्ट इन ग्रोथ, शोल्डर ग्रिडल ग्रोज मोर दैन द हिप ग्रिडल. लड़कों में आपको हमेशा ये जो शोल्डर पोर्शन होगा ये हमेशा आपको ब्रॉडर दिखाई देगा एज कंपेयर टू द गर्ल्स. ब्रॉड बियर्ड, मुस्टैच, प्यूबिक एंड चेस्ट हेयर ग्रो, वॉइस बिकम्स डीप एंड होर्स एंड लो पिच्ड वॉइस. ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं बॉयज में. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपका डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, आवाज में बहुत ज्यादा गहराई, डीप होर्स वॉइस आपकी इनकी डेवलप हो जाती है. गर्ल्स में ओवरीज मैच्योर, रिलीज ऑफ एग्स स्टार्ट, यूटेरस इन वजाइना ग्रोज इन साइज, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, पीरियड्स इसी टाइम पे आपका स्टार्ट हो जाता है. सडन स्पर्ट इन ग्रोथ फॉर अ शॉर्ट टाइम, हिप ग्रिडल बिकम्स through shaped and bigger than shoulder girdle, breast grow, no hair on chest or abdomen, high pitched voice. तो लड़कियों में hip girdle आपका broad होना start हो जाता है, और लड़कों में क्या होता है? shoulder girdle बड़ा होना start हो जाता है. So the changes that occur in puberty are perfectly normal, but adolescents who are worried about them should ask for help from their parents or counselor at school. The changes in the hormones sometimes cause depression and emotional swing during adolescence. इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि sudden changes आते हैं, expected हमें होते नहीं हैं, इनके बारे में हमसे कोई बात भी नहीं करता है इससे पहले, तो sudden changes बॉडी में आते हैं तो डिप्रेशन या फिर अनइवन फीलिंग होना इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. तो इस केस में आपको डिप्रेशन या दुखी तो बिल्कुल नहीं होना है. अपने फैमिली में किसी से बात करिए, या फिर स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जस्ट गो एंड टॉक टू देम बिकॉज दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल. नाउ adolescence and the related psychological changes. It is well known that adolescence is not an easy stage but is a critical period as constant changes are taking place. There are changes turning up with every step you make. The confusion of this crucial life stage can affect people both physically and psychologically. तो अब यही वही टाइम होता है जब, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस एक्सटर्नली भी आते हैं, इंटरनली भी आते हैं, डिफिकल्ट भी होता है, उतना ही क्रिटिकल भी होता है. यही वो टाइम होता है जब या तो आप अपनी जिंदगी बना लेते हैं पॉजिटिव चेंजेस लाके, या फिर यही वो टाइम होता है जब आप गलत डायरेक्शन में जाके अपनी पूरी जिंदगी खराब भी कर सकते हैं. ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही टाइम है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत फ्रेजाइल होता है, अच्छी और बुरी चीजों के बीच में ज्यादा डिफरेंशिएट हम कर नहीं पाते हैं. सो एडोलेसेंस इज दैट पीरियड ऑफ टाइम. So both the girls and boys become conscious about the growth of their body. क्योंकि अजीब से चेंजेस आने, ऑल्दो वो अजीब होते नहीं हैं, बट क्योंकि सडनली आते हैं तो वो चेंजेस हमारे लिए ऑब्जर्व हो जाते हैं. कैसी भी शेप बनने लग जाती है बॉडी की, जिसकी वजह से गर्ल्स को भी अजीब फील हो सकता है, और उसी के साथ साथ बॉयज को भी बहुत ज़्यादा वियर्ड फीलिंग आ सकती है. जहाँ मुंह पे कोई बाल ही नहीं थे, उनके अगर मुंह पे बाल भी आने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में सबको होगी ही. दिस इज ऑल्सो वेरी 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 नॉर्मल. Now they start giving time in growing themselves and becomes worried about their future. They many times start fearing and develops a stage of depression in time, and there is nothing but occurs due to the increased level of hormones in their body. This hormone affects the brain that controls both mood and emotions, and this all is although temporary and goes away along with time. तो ये वही टाइम होता है क्योंकि ब्रेन ऑब्वियसली हॉर्मोन्स एक्स्ट्रा सिक्रीट कर रहा होता है, तो आपका मूड बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चेंज हो सकता है.
बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट के लिए, ऑब्वियसली आप अंदर घुस के तो देख नहीं सकते हैं, बट एक्सटर्नली आपको वो सारी चीज़ें फील हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव मूड में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा हमें उस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद होता है, घर वाले कुछ बोलते भी हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे अगेंस्ट ही हैं, हमारा भला ही नहीं चाहते हैं, हमारे दोस्तों से प्रॉब्लम है। यही सारी चीज़ें इस टाइम पे हर किसी को फील होती है। मेरे टाइम पे मुझे फील हुई थी, आपके टाइम पे आपको फील होगी, आपके पेरेंट्स के टाइम पे उनको फील हुई होगी। These are absolutely normal, but the most important thing is कि अगर आपको कोई चीज़ें सिलेक्ट करनी भी हैं तो एटलीस्ट यूज़ योर ब्रेन। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स या किसी भी एल्डरली बीइंग से इस चीज़ के, किसी भी चीज़ के बारे में बात करिए। गलत डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाना है। रॉन्ग कंपनी आपको मिल सकती है इसी रास्ते पे, जहाँ पे लोग पीयर प्रेशर के चक्कर में कुछ भी कर लेते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल या फिर किसी भी चीज़ों में इंडल्ज होना स्टार्ट कर देते हैं। बट दिस इज़ द टाइम जब आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं होना है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। Keeping clean is an important part of staying healthy. For example, the simple act of washing hands before eating and after using the toilet is a proven and effective way of fighting the germs and avoiding sickness. Being clean is also an important part of confidence for teenagers. If your child's body and breath smell gas, their clothes are clean and they are on top of their basic personal hygiene, as this can help your child feel comfortable with other people. Hygiene cannot be ignored. तो आप पर्सनल हाइजीन हर पॉइंट पे ज़रूरी होती है, और इन ग्रोइंग एजेस में आपके कपड़े साफ हैं, आप रेगुलर नहा रहे हो, आपकी बॉडी से खुशबू ही खुशबू आ रही है, बिल्कुल पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रहता है, आप कंफर्टेबल भी फील करते हो एंड कॉन्फिडेंट भी आप पब्लिक प्लेसेस पे फील करते हो। सो वन, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। सही टाइम पे सोना, एडिक्वेट रेस्ट, 8 से 9 घंटे की नींद लेना ही लेना अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे आप ये कर सकते हो? ज़्यादा लंबे लंबे टाइम के लिए खेलना नहीं है, टाइम्स अपने अलॉट करिए। किस टाइम पे आपको टीवी देखना है, किस टाइम पे होमवर्क खत्म करना है, कितना आपको खेलना है, कब आपको खाना खाना है, इस सब का एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। स्कूल में भी यही होता है, फिक्स टाइम पे आप पढ़ते हो, फिक्स टाइम पे आप लंच करते हो, फिक्स टाइम पे आप खेलते हो। तो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जब आप स्कूल से घर जाते हो। हर चीज़ का फिक्स टाइम होना चाहिए। फ़ोन टीवी पे आपको ज़्यादा टाइम के लिए लगना नहीं है। टेबल वर्क आपको बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करना है। मूवमेंट आपको मेंटेन रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड सिगरेट, ड्रग्स। एडल्ट्स के लिए भी ये अच्छा नहीं है, तो बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड सेकेंड इज प्रॉपर एंड सेफ फूड। नेचुरल सी बात है, इस टाइम पे बाहर का पिज्जा, बर्गर, ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं, बट एट द सेम टाइम यही ग्रोइंग एजेस हैं। इसी टाइम पे अगर अपनी बॉडी में अपने न्यूट्रिशन की कमी कर दी और यही सब खाया और घर का खाया ही नहीं, तो इंटरनली ऑर्गन्स तो खराब होंगे ही, इसके साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी ड्रेन आउट होना शुरू कर देगी। तो बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में होनी चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स खाइए, एक फ्रूट डेली अपनी डाइट में रखिए ही रखिए, वेजिटेबल्स फ्रेश होनी चाहिए। सो ऑल दीज आर सर्टेन थिंग्स जिससे आपका फूड इनटेक बहुत अच्छा हो सकता है। देन थर्ड इज क्लेनलीनेस, साफ सफाई मेंटेन रखना। डेली नहाना है, वॉशरूम जैसे आपने हो कर लिया है, उसके बाद आपको अपना हाथ धोना है, साबुन से हाथ धोना है। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, उठ रहे हैं तो अपना एरिया साफ करके उठिए, गंदगी नहीं फैलानी है। सोप से साफ करना है, अंडरगारमेंट्स रेगुलरली वॉश करने हैं, डेली नहाना है। दीज आर बेसिक हाइजीनिक टेक्निक्स जिसको फॉलो करके आप साफ सुथरे रह सकते हो। रेगुलरली इसको अडॉप्ट करिए एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन इनसाइड आउट। Then clean your feet every day. Hair should be washed and combed properly with a clean comb. Eyes should be washed daily with clean and cold water. तो ये सारी बेसिक टेक्निक्स होती हैं। अपनी आंखों को, कुछ आपकी आंखों में घुस जाता है, रब नहीं करना है, आंखें खराब हो जाएंगी। क्लीन वाटर से उसको साफ करते रहिए प्रॉपर तरीके से। गर्ल्स स्पेशली जिस टाइम पे आपका मेंस्ट्रुएशन टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पे आपको खास करके ध्यान देना है और डेली उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से नहाना ही नहाना है, ताकि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे विद हाइजीन। एंड देन obviously everybody talks about it, the physical exercise. किसी भी फॉर्म की फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग एनी आउटडोर स्पोर्ट, आपका फिजिकल एक्सरसाइज में काउंट होगा, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। तो किसी ना किसी फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज रहिए। जो एडोलेसेंस के टाइम पे डिप्रेशन या एंजाइटी वाला फेज होता है, फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, वो फेज भी आपका नहीं आएगा। सो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है जस्ट to enjoy your adolescence age. And then last is your stress.
Stress is a normal response to life's changes, pressures and challenges. It's a mind and a body signal that helps you get ready for what is ahead. Stress is considered as a body's way to respond to any demand. It is caused by the good and bad experiences of life, and in stress conditions, body of a person reacts by releasing certain hormones into the blood. So stress is commonly felt when we have to handle anything more than we are used to, and we often feel that there is nothing you can do about the things that are going in and around you and your life. Hence, results in the alteration of attention, though thought processes, bodily functions that often results in the physiological and psychological disorders. And during stressed conditions, like the hormones of our body gets speeded up, thereby increasing the heart beat, resulting in the burst of energy. So आपका स्ट्रेस बेसिक आपकी बॉडी का तरीका होता है, आपकी बॉडी प्रिपेयर करती है आने वाली बहुत सारी चीज़ों के लिए. सो बेसिकली स्ट्रेस कब आता है? जब हमें लगता है कि आसपास हमारी जो चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं. बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देती है कि हमें बहुत स्ट्रेस, परेशान होना हम स्टार्ट कर देते हैं. बट परेशान होने की कोई बात नहीं है. अगर आपकी चीज़ कोई हाथ में है ही नहीं तो आप परेशान भी हो जाएंगे तो भी वो चीज़ नहीं होगी. और अगर आपके हाथ में वो चीज़ है, आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो तो भी स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. जस्ट वर्क अपॉन इट और वो काम खत्म हो जाएगा. सो दोनों ही सूरतों में स्ट्रेस लेने का कोई भी सेंस बनता ही नहीं है. आप सिर्फ अपना काम करते जाइए, सारी चीज़ें विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेसेस. नाउ हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. बहुत तरीके हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज योगा. योगा आपकी माइंड बॉडी के फिजिकली भी आप फिट रहोगे और आपका स्ट्रेस भी, आपके माइंड बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा. देन कम्स मेडिटेशन, आपकी माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट. जहाँ पे आपका दिमाग शांत हुआ वहीं पे आप स्ट्रेस लेना भी वहीं बंद कर दोगे. जितना शांत आप रहोगे उतना ही सही तरीके से आप सोच पाओगे, उतने ही सही डिसीजंस आप ले पाओगे. कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. वही टाइम होता है जब दोस्त जो बोलता है वही हम करते हुए जाते हैं बिना सोचे समझे कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है. बट माइंड शांत होगा, मेडिटेट आप करते रहोगे, सो यू विल नो कि मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है. देन कम्स एक्सरसाइजेज. रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज करते रहिए तो भी आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे. एंड देन कम्स द हॉबीज. आपकी कुछ ना कुछ हॉबीज, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, लिखना, गाना, जो आपको पसंद है वो रेगुलर बेसिस पे आप करते रहिए. जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो रेगुलर करते रहेंगे और उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है तो भी आपका माइंड बिल्कुल ठीक रहेगा. Now check your progress and these questions you have to answer on your own. Now let's summarize the chapter. The endocrine system is a collection of glands. Hormones have specific functions such as regulating growth, metabolism, temperature and reproductive development. The endocrine system derives its power from coordinating the interactions that take place between the hormones that are released by this network of glands. Thyroid gland secretes hormone thyroxine that contains iodine, and iodine deficiency in diet during pregnancy is the major cause of cretinism. The adrenaline glands are endocrine glands that produce a variety of hormones including adrenaline and the steroids adolescence and cortisol. Adrenaline is also called the emergency hormone as it is secreted in stress conditions of the body, and this hormone prepares the body to meet any emergency situation. The pituitary gland is also called the master gland. Growth hormone, which is GH, is responsible for the growth and the repair of the cells in the body. Then you have the antidiuretic hormone ADH that controls the water balance of the body by affecting the reabsorption of water by the kidneys. Dwarfism is a condition wherein an organism is exceptionally small. Diabetes insipidus is an uncommon problem that causes the fluids in the body to become out of balance. Pancreas has a cluster of hormone secreting cells, and islets of Langerhans functions mostly to regulate blood sugar levels, secreting mainly the hormones insulin and glucagon. Adolescence is a transitional stage of physical and psychological development that generally occurs during the period from puberty to adulthood. The physical or biological changes that begin in the body during adolescence causes girls to grow into young women and the boys to grow into young men. The period of human development that occurs during the teenage years between the end of childhood and the starting of adulthood is called the puberty. Keeping clean is an important part of staying healthy. Stress is a normal response to life's changes, pressures and challenges. It's a mind and body signal that helps us to get ready for what is ahead. So this entire chapter dealt with your different kinds of glands which ultimately help in your adolescent years, and how to manage stress is what we have studied in this chapter. Now with this, we're done with this chapter. Please go through the entire chapter properly.
Accept your body as it is. Don't feel depressed at all, and manage your stress properly. And rest of the exercise questions, please do it yourselves.